اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم، آپ نوازیں گے تو عرض کر سکوں گا، آپ مدد فرمائیں گے تو عرض کر سکوں گا، اپنے صفت نور سے اور صفت علیم سے مدد فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ کامل مرشد کے پاس، یہ بزرگان دین کے پاس کیوں جانا چاہیے؟ تو بزرگان دین کے پاس کس مقصد سے جانا چاہیے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ آپ ان سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جائیں، وہ آپ کو جو دین کا علم سکھائیں، جو فرائض اور واجبات کے بارے میں بتائیں، وہ بتائیں کہ کفریہ کلمات کیا ہیں، شرکیہ کلمات کیا ہیں، ان سے کیسے بچنا ہے، نفس کی اصلاح کیسے کرنی ہے، ظاہر اور باطن کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اپنے نفس کو کیسے پہچاننا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کی خباثت اور روح کی طاقت کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کامل مرشد کے پاس یا بزرگان دین کے پاس جانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب مل جائے، اللہ اور اس کے رسول کا عشق مل جائے، ان کا ادب مل جائے، ان کی محبت مل جائے، اور دین کا علم حاصل ہو جائے۔ آپ کفر سے بچ جائیں، آپ شرک سے بچ جائیں، آپ کا ظاہر اور باطن پاک ہو جائے، آپ کو تقوی عطا ہو جائے، پرہیزگاری عطا ہو جائے، خوف خدا ہو جائے، آپ کو خوف خدا عطا ہو جائے، آپ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی آپ کے قول و فعل میں کوئی تضاد باقی نہ رہے۔ یہ ہے اس کے پاس جانے کا مقصد۔ یہ مقصد اگر آپ کو نہیں مل رہا تو پھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں ان کی تبلیغ میں کوئی کمی ہے، اگر اس کامل مرشد کی تبلیغ میں کوئی کمی ہے تو آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں، آپ پر پابندی نہیں ہے، آپ اسی کے پاس جائیں۔ اگر ان کی تبلیغ میں کمی نہیں ہے تو آپ دیکھیں دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ عمل نہیں کر رہے، یا تو اس میں پرابلم ہوگی نا کہ اس کی تبلیغ میں کمی ہے کہ وہ حق پیغام نہیں صحیح طریقے سے پہنچا پا رہا، آپ کو نہیں سمجھا پا رہا، تو پھر کہیں اور چلے جائیں۔ پابندی تو نہیں ہے آپ ایک ہی کے پاس رہیں۔ اور اگر وہ اپنے طرف سے صحیح طریقے سے حق پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں تو پھر آپ میں کیا کمی ہے اس کو تلاش کریں۔ آپ عمل ہی نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم 10 سال سے جا رہے ہیں اور ہمیں فیض نہیں مل رہا، تو کیسے فیض ملے گا؟ اس کا کام تو راستہ دکھانا ہے، راستے پر تو آپ نے خود چلنا ہے۔ جو اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا اس کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، چاہے 1000 کامل مرشد مل جائیں، 1000 ولی مل جائیں، لاکھ ولی مل جائیں، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کیا اصلاح کر لیں گے؟ واضح و نصیحت کریں گے، اس کو بیٹھ کے سمجھائیں گے، پر عمل تو اس نے کرنا ہے۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے بدلنا ہی نہیں ہے، عمل ہی نہیں کرنا، تو پھر تو وہ نہیں بدلے گا۔ پھر آپ 100 مرشد چھوڑ دیں، 1000 چھوڑ دیں، غلطی تو آپ کے اندر ہے۔ آپ کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ ایسے لوگوں کی اللہ بھی اصلاح نہیں کرتا۔ اللہ اصلاح کرنے پر قادر ہے پر اصلاح نہیں کرتا۔ وہ فرماتا ہے جو اپنی مدد نہیں کرتے میں ان کی مدد نہیں کرتا۔ تو اگر آپ کامل مرشد کے پاس جاتے ہیں اس مقصد سے جائیں کہ اللہ اور اس کا رسول مل جائے، اس کا قرب مل جائے، آپ کو دین کا علم نصیب ہو جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب آپ نے دین کا علم ان سے سیکھ لیا کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ نفس کی بیماری ہیں، یہ ساری چیزیں سیکھ لیں۔ اب اس پر فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ اس پر عمل کریں گے۔ عمل کیے بغیر تو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا جی انہوں نے سکھا دیا، ہم نے عمل نہیں کیا، تو غلطی تو آپ کی ہے، اس میں ان کی غلطی نہیں ہے، آپ کو فیض نصیب نہیں ہوا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فیض نصیب ہو تو آپ کو حکم ماننا ہوگا۔ جو حکم دیں وہ قرآن سنت اور حدیث کے مطابق ہو تو وہ حکم مانیں اور اس پر عمل کریں۔ جو حکم نہیں مانے گا، عمل نہیں کرے گا، وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس میں کوئی اور سوال ہے ذہن میں؟ مثال کے طور پہ تقویٰ پیدا ہو تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے صرف نیک بنے ہوئے ہیں، یہ تقویٰ ہے۔ یہ تو تقویٰ نہیں ہے، یہ تو ریاکاری ہے۔ آپ جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، ہر جگہ پہ تقویٰ ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے بھی ہیں تو نیک عمل کر رہے ہیں، تنہائی میں بھی نیک عمل کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے بھی گناہوں سے بچنے والے ہیں اور تنہائی میں بھی گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ آپ کا قول و فعل میں تضاد لوگوں کے سامنے بھی نہیں ہے اور تنہائی میں بھی نہیں ہے۔ آپ کا جسم صاف ہے، لباس صاف ہے، آپ کی سوچ صاف ہے، آپ کا دل صاف ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ پریکٹیکل تقویٰ ہے۔ تو یہ چیزیں جب تک پیدا نہیں ہوں گی، آپ آئے، آپ نے دنیاوی معاملات لے کے آئے، دنیاوی معاملات میں دعا کرانی ہے یا دم کرانا ہے، بس اور کوئی کام نہیں ہے، تو وہ دعا کرا لیں، دم کرا لیں، اللہ پاک رحمت کر دے، آپ کی دنیاوی معاملات بھی آسان کر دے، پر یہ مقصد تو ہے ہی نہیں کامل مرشد سے ملنے کا۔
बुजुर्गान दीन से मिलने का तो मकसद ही ये नहीं, वो तो अल्लाह तक पहुंचाना चाहते हैं। उनसे तो मिलना इसलिए चाहिए ताकि वो अल्लाह तक पहुंचा दें आप। ये दुनियावी मामला तो और भी कोई शख्स आपका हल कर सकता है दुनियावी मसला, पर वो अल्लाह तक पहुंचा दें। अल्लाह तो करीब है, फिर अल्लाह तक कैसे पहुंचा दें? मतलब दिल के ऊपर जो नफसानी ख्वाहिशात का पर्दा पड़ा हुआ है वो हट जाए। और वो कैसे हट जाए? वो कामिल मुर्शिद निगाह डाले और हटा दे। ऐसी कोई निगाह नहीं ईजाद हुई आज तक कि निगाह डाले और हटा दे। वो तरीका बताएगा, आपने उस पर अमल करना है, अब वो हट जाएगा। अच्छा, उसने तरीका बता दिया, आपने अमल करके देखा, नहीं हट रहा, मतलब उसमें उसकी तबलीग में कोई कमी है, आप किसी और के पास चले जाएं। क्योंकि आप तो पूरे बताए हुए तरीके पर अमल कर रहे हैं, पर अगर आप पूरे बताए हुए तरीके पर अमल नहीं कर रहे तो अपनी इस्लाह करें। जब तक आप नहीं अपनी इस्लाह करेंगे ना, आपको कोई नहीं बदल सकता। तो ये मकसद समझ लें कि हम वो ज़ियारत हो जाएगी नबी पाक की, अल्लाह पाक का दीदार हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? जब तक अपनी इस्लाह नहीं होगी तो नहीं होगा ये सब। एक दफ़ा हो गया नबी पाक का दीदार, बहुत बड़े करम की बात है, हो गई, कोई छोटी बात नहीं, हो गया। ये कैसे हुआ? इसमें आपका क्या कमाल है? ये तो अल्लाह ने अपनी रहमत से करा दिया, मुर्शिद की दुआ से हो गया, नबी पाक के करम से हो गया। आपका इसमें क्या कमाल है? आपका तो कमाल तब है जब आपने सारे अहकाम पर अमल किया, ज़ाहिर भी पाक कर लिया, बातिन भी पाक कर लिया, गुनाहों से बच गए, अब लगातार हाज़िरी जारी है। अब कभी कल्बी दीदार हो रहा है, कभी कल्बी कलाम हो रहा है अल्लाह पाक के साथ, कभी जागते हुए नबी पाक का दीदार हो रहा है हालत बेदारी में, कभी नींद में हो रहा है। ये लगातार मामला चल रहा है। ये है सारा काम कि ईमान इसलिए लाना है, नेक अमाल इसलिए करना है, गुनाह से इसलिए बचना है कि अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, अल्लाह का दीदार नसीब हो जाए। वो कुछ कहते हैं ज़ियारत से कुछ होता नहीं, ये भी गलत कहानी है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर लाना क्यों है ईमान? नेक अमाल करने क्यों है? गुनाहों से बचना क्यों है? ताकि अल्लाह का दीदार नसीब हो ना, अल्लाह की रज़ा नसीब हो, अल्लाह का कुर्ब नसीब हो, नबी पाक का कुर्ब नसीब हो। तो ये सारे फल हैं। और फल कब मिलेंगे? पहले जब आप फसल काश्त करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, फिर जाके फल मिलेगा, या पहले फल मिल जाएगा? आप बैठे नज़र हो जाएगी तो फल मिल जाएगा? नज़र नहीं होगी। उन्होंने कहा वाली अल्लाह कहते हैं अता ही अता है, तो अता कौन सी है? उन्होंने ये कहा कि अता ही अता का मानी आज समझ लें। अता ही अता का मानी ये है कि आप ईमान लाएं, नेक अमाल करें, गुनाहों से बचें, और अब मामला अल्लाह के सपुर्द कर दें कि अल्लाह अपनी रहमत से आपको जन्नत अता कर दे। ये अता ही अता है। हमने अता ही अता का मानी क्या समझ लिया है कि ये अता ही अता है कि जी हम हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहें, कोई वली आए, कोई बुज़ुर्ग आए, कोई बुज़ुर्गान दीन आए, वो हम पर नज़र डाले और अता ही अता करे। ये अता ही अता नहीं, ये खता ही खता है कि आपने कोई काम नहीं करना, आपने कोई अमल नहीं करना, दूसरे में नज़र डाल के करना, ये नहीं है, ये खता ही खता है, ये गलती है, ये नफ्स का धोखा है, ये फरेब है। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, नफ्स ने आपको बेवकूफ़ बना रखा है। ऐसी कोई अता ईजाद ही नहीं हुई। जब भी अता ही अता की बात होती है तो औलिया अल्लाह कहते क्यों हैं, उलमा हक ये कहते क्यों हैं, क्यों फरमाते हैं? वो कहते हैं हमने अपना जो करना था, हमने अपनी तमन्ना की, फिर उसके बाद पुख्ता इरादा किया, फिर अपनी मुकम्मल कोशिश की, मुकम्मल इख्तियार इस्तेमाल किया, अब हमने सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अब अता ही अता है। ये है कि हमने अपने अमल की नफ़ी कर दी है कि हमारे अमाल से कुछ नहीं मिलना, करके नफ़ी की है, अमाल करके नफ़ी की है। हमने क्या किया? वो अमाल करके नफ़ी नहीं की, अमल किया ही नहीं, अमल की ही नफ़ी कर दी है। उन्होंने अमाल करके नफ़ी की है कि मेरे अमाल इस काबिल नहीं, तेरी रहमत से बख्शा जाऊँगा। इसमें और उसमें फ़र्क है ना, बहुत फ़र्क है। एक बंदे ने अमल ही नहीं किया, उसने कहा जी अता से होगा, ये तो अता से नहीं होगा। जिस चीज़ का इख्तियार अल्लाह पाक ने दे दिया है उस चीज़ में अल्लाह मदद नहीं करता। आपको जिस चीज़ का इख्तियार दे दिया गया है उसमें अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आएगी, गैब से मदद नहीं आएगी। गैब से मदद तब आएगी जिस चीज़ में आप मजबूर होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं इस गिलास को उठा सकता हूँ, और मैं ये कहना शुरू कर दूँ कि मैं इस गिलास को अपने हाथ से नहीं उठाऊँगा, अल्लाह से मदद मांगना शुरू कर दूँ, या अल्लाह तू अता ही अता करके ये गिलास मुझे मिल जाए, मेरे हाथ में आ जाए, तो ये पूरी ज़िंदगी आप दुआ करते रहें, ये गिलास हाथ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका इख्तियार और ताकत आपको दे दी गई है कि आप उठें और गिलास उठा लें। ऐसी नमाज का इख्तियार और ताकत आपको दे दी गई है कि आप उठें, वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें। इसमें अब आपको मज़ीद ताकत नहीं मिलने वाली, इसमें आप कोई मजबूर नहीं है। जिसमें आप मजबूर हैं उसमें मदद मिलेगी। मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूँ, उस मिशन में मैंने जो ताकत इस्तेमाल करनी थी, जो अल्लाह ने दी थी, सारी कोशिश कर ली। अब उस मिशन को पूरा करने के लिए मुझे उड़ने की ज़रूरत है,
तो उड़ने में तो मैं मजबूर हूँ। तो यहाँ पर अल्लाह की गैब की मदद आएगी कि अब मुझे उड़ने की ताकत दे दी जाएगी। ये जो AC/DC को ताकत दी जाती है, ये इसलिए नहीं दी जाती कि वो इन्जॉय करें, इसलिए दी जाती है कि वो इंतज़ाम को बेहतर करें। औलिया अल्लाह को जो करामत दी जाती है वो इसलिए नहीं दी जाती कि वो इन्जॉय करें, उड़ते रहें, गायब होते रहें। वो इसलिए दी जाती है कि वो हालात को बेहतर करें, लोगों को अल्लाह के रास्ते पर लेकर आएँ। तो ये गैब की मदद और ताकत तब मिलती है जिन मामलात में आप मजबूर हों, जब आप मुकम्मल कोशिश कर चुके हों, तब आपको मदद मिलती है। वही वाक़या जो बीबी ज़ुलेखा वाला है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पर ज़ना करने की उन्होंने कोशिश की, बीबी ज़ुलेखा ने। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अल्लाह से मदद मांगी, पुख्ता इरादा किया कि मैंने ज़ना नहीं करना, इससे बचना है, और बंद दरवाज़ों की तरफ दौड़ पड़े। अब दरवाज़े बंद हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं, बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, वो तो नहीं टूट सकते। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इख्तियार नहीं है, उनकी ताकत नहीं है कि बड़ा दरवाज़ा तोड़ दें या ताला तोड़ दें। तो इस मामले में मजबूर थे। अल्लाह ने क्या किया? यहाँ पर गैर से मदद भेज दी कि ताले तोड़ दिए, दरवाजे खोल दिए। तो अल्लाह का ये कानून है, और अल्लाह के कानून कभी नहीं बदलते और किसी के लिए नहीं बदलते। अल्लाह का कानून क्या है कि जहाँ पर आपको इख्तियार दिया गया है, जहाँ पे आपको ताकत दी गई है, वहाँ पर गैर से मदद नहीं आएगी। वो देना चाहेगा आपसे मदद, दे दे, वो इस चीज़ पे कादिर है, पर करता नहीं है ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पर भी गैब से मदद कब आ रही है कि उन्होंने अपना मुकम्मल इख्तियार इस्तेमाल कर लिया। पर मुरीद क्या हैं? वो तो मुकम्मल इख्तियार इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। वो तो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ जाएं, दम कराएं, दुआ कराएं, और कोई नज़र पड़ेगी, 15-20 साल से इंतज़ार में बैठे हैं कि आज नबी पाक का दीदार हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। आपको तज़किया नफ्स करना पड़ेगा, अपनी इस्लाह करनी होगी। जो कामिल मुर्शिद आपको बताता जा रहा है उसको मानना होगा और उस पर अमल करना होगा, फिर होगा। तो ये बात अगर समझ में आ जाए तो अल्लाह पाक का एहसान है। अगर नहीं समझते तो ये फिर अल्लाह की इसमें कोई गलती नहीं, ये हमारी गलती है, हमारी खता है।